All right, so start writing. We are happy to announce. We are happy to announce. वापस लिख लो बेटा, अगर सेम लिखा है तो भी. We are happy to announce the grand opening. We are happy to announce the grand opening of our catering companies. Of our catering companies 100th branch. We are happy to announce, यहाँ पे देखो आप, we are happy to announce the grand opening of our catering companies 100th branch in XYZ नगर न्यू दिल्ली. मेरी कोशिश ये है कि सैंपल से सिमिलर लैंग्वेज लिखवाऊं जिससे कि आपको हर एक की लैंग्वेज बनाने में दिक्कत नहीं आए. ठीक है, वरना मैं अलग लैंग्वेज लिखवा दूंगी, आपको लगेगा मैम वो तो आपने लिखवाई, हम कैसे लिखें. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक लैंग्वेज को बेस कैसे बनाया जा सकता है. राइट. सो वी आर हैप्पी टू अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ आर केटरिंग कंपनीज 100th branch in XYZ नगर न्यू दिल्ली. फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करिए. In order to celebrate the grand opening, in order to celebrate the grand opening, we are pleased to offer, in order to celebrate the grand opening, we are pleased to offer you extra benefits. We are pleased to offer you extra benefits for availing the unique services of our catering house. So we are pleased to offer you extra benefits for availing the unique services of our catering house. नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करिए. We are providing 20% extra discount. We are providing 20% extra discount to top 10 customers. To top 10 customers. We are providing 20% extra discount to top 10 customers. Next paragraph. We have an edge. ये लाइन अपन लिख चुके हैं ग्रीन क्लीन वाली में, एज वाली लाइन याद आ रही है आप लोगों को. So we have an edge. We have हाँ अभी तक एक ही पैराग्राफ चल रहा था अपना. We have an edge over such companies providing
similar services over such companies providing similar services because of our healthy and tasty food menu. Providing similar services because of our healthy and tasty food menu. अब एक लाइन छोड़कर लिखेंगे आप लोग, following are the special features. Following are the special features of the catering company, of our company. Following are the special features of our company. Following are the special features of our company. Point number 1. पॉइंट नंबर 1, जो अपन ने इंक्वायरी लेटर पढ़ा था, आप लोगों को याद आ रहा है? उसी के फीचर्स अपन बना दें यहाँ पर. We can handle big guest list. We can handle big guest list and arrange. We can handle big guest list and arrange lavish celebration dinner. We can arrange big guest list and arrange lavish celebration dinner. Point number 2. Waiters and hosts are provided. Waiters and hosts are provided along with the services. Along with the services. जो मेन सर्विसेज है उसके साथ हम होस्ट और वेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं. पॉइंट नंबर 3, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स अवेलेबल. Offers and discounts available. Point number 4, variety of menu options. Variety of menu options. Next point, no additional charges. Next point, no additional charges are levied. No additional charges are levied for. No additional charges are levied. यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, देख सकते हैं आप. Levied for linens and centerpieces. No additional charges are levied for linens and centerpieces. You can see here on the screen, this is available. कितने points हो गए? 5. One more point.
arrangement of formal event, arrangement of formal and informal event, arrangement of formal and informal event is available. 6 points हो गए. Next line. For more information, ये थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा लिखवा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये मानते हुए कि 2-4 चीज़ें तो आप एग्जाम तक भूल ही जाओगे, तो थोड़ा ज़्यादा ही अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, ठीक है. सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट. आपने जो भी अपनी कंपनी का नाम लिखा है उससे वेबसाइट का नाम लिख दीजिए. आपने फ्रॉम में लिखा होगा कंपनी का नाम, उससे वेबसाइट बना दीजिए. For more information, please visit our website www. जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो लिख लीजिए. For better details, please find attachment. For better details, please find attachment. अटैचमेंट पे फुल स्टॉप कर दो बस. प्लीज फाइंड अटैचमेंट. नेक्स्ट लाइन. काइंडली विजिट द ब्रांच. काइंडली विजिट द ब्रांच. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो. काइंडली विजिट द ब्रांच. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो. इट्स देयर ऑन योर स्क्रीन. Kindly visit the branch. Contact details are given below. एड्रेस लिखेंगे आप लोग, जो लिखा है वही सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और खुद का एड्रेस बना सकते हो, बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो. एड्रेस के जस्ट नीचे फोन नंबर. एक लाइन छोड़कर एक लाइन और लिख लीजिए. प्लीज फील फ्री. लिख लिया ये आप लोगों ने? लिखो, जल्दी लिखो. लिखा आप लोगों ने कंटेंट? अब एक लाइन छोड़कर लिखिए. प्लीज फील फ्री. प्लीज फील फ्री to contact. Please feel free to contact for better details. Please feel free to contact for better details. We would be happy to serve you at the earliest. वो जो अपनी कॉमन लाइन है, we would be happy to serve you at the earliest. We would be happy to serve you at the earliest. एक लाइन छोड़कर थैंक्स एंड रिगार्ड्स वाली डिटेल लिख लीजिए. कितने पेज का हो गया? 1.5 या 2 पेज का हुआ टेंटेटिव. ये मानते हुए कि 4-5 लाइनें तो भूल ही जाओगे आप लोग, ठीक है. तो आपके पास जो मैं कंटेंट लिखा हूँ वो ज़्यादा ही होना चाहिए, कम तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है. इतना बड़ा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में 1.25 पेज 1.5 पेज तक इनफ मानते हैं, लेकिन कंटेंट ज़्यादा ही होना चाहिए जो भी मैं आपको लिखवाऊँ. अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने जो भी कुछ लिखवाया है वो पिछले लेटर से मिक्स मैच करके लिखवाया है.
राइट। तो ऐसा थोड़ी ना था कि कुछ और नहीं लिख सकते थे या कुछ और अपने को आता नहीं दिमाग में कि अपन लिख नहीं सकते। वी कैन राइट, अपन बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, नई चीजें लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले लेटर से ही बेस बनाकर इसीलिए लिखवाया है जिससे आपको ये पता रहे कि जितना कंटेंट अपन पढ़ रहे हैं वो इनफ है, उसी से मिक्स मैच करके आप लोग एग्जाम में लिख के आ सकते हो। कुछ अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं, जो पढ़ लिया उसी को आप लोगों को मिक्स मैच करना है। एम आई क्लियर ऑन दिस नोट? थोड़ा तेज बोलो। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मैंने वही ऐड करवाई है जो आपके इंक्वायरी लेटर में थी। आप क्यूजीन की टेबल बना सकते हैं, स्पेशल क्यूजीन लिख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन सब मिलता है। सो यू कैन कम अप विद ऑल दीज पॉइंट्स, यू कैन मेक अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ द सेम। आप एक ब्रीफ लिस्ट बना सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास हर एक मेन्यू के 50 तरीके के ऑप्शन है, हम इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमने सेलिब्रिटीज के डिनर्स भी ऑर्गेनाइज करें, बहुत चीजें लिख सकते हो आप, राइट। बट मैंने ये सारी चीजें इसलिए नहीं लिखवाई आप लोगों को कि आपको लगे कि ये तो मैम आपने लिखवा दिया, हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने इसीलिए उसी को बेस बनवाया जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, जिससे आपको ये पता रहे कि टीप टाप के आप मेन एग्जाम में कैसे काम कर सकते हो। जो ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट है उसी से बनाओ, उसी की प्रैक्टिस करो। एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो याद भी अपने आप हो जाएगी, अलग अलग पढ़ोगे तो याद करने में भी दिक्कत आएगी, राइट। सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दिस सेल्स और प्रमोशन लेटर? सेल्स और प्रमोशन की आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है आप लोगों के एग्जाम में। सो चाहे लेटर फॉर्मेट में आए चाहे मेल फॉर्मेट में, अपन बहुत सारे कर चुके हैं सेल्स प्रमोशन की प्रैक्टिस। तो आपको डाउट है किसी भी स्टूडेंट को कि मैम मेन एग्जाम में दिक्कत आएगी? नहीं। तो आप लोगों को या तो स्टार्टिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि या तो आप लोगों की स्टार्टिंग होगी वी आर हैप्पी टू अनाउंस करके, या फिर थैंक यू वाली लाइन से आप शुरू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप थैंक यू वाली लाइन लिख रहे हैं तब तो आप वो सब लिखना, एस्टीम कस्टमर, ओल्ड वैल्यूएबल कस्टमर हो, आप प्रिविलेज्ड हो इसलिए हम दे रहे हैं। अब ये वाला जो लेटर था अपना, इसमें अपन ने वी आर हैप्पी टू अनाउंस करके शुरुआत करी। कहीं भी आप नोटिस कर सकते हो अपन ने कहीं एस्टीम कस्टमर नहीं लिखा, कहीं ओल्ड वैल्यूएबल कस्टमर नहीं लिखा, राइट। बस यही लिखा है कि हम भाई टॉप 10 कस्टमर्स को दे रहे हैं, हम क्यों बेटर हैं, ये वी हैव एन एज। वी हैव एन एज का मतलब हम औरों से बेटर क्यों है। तो हम औरों से बेटर इसलिए है क्योंकि हमारे हेल्दी है और टेस्टी फूड अवेलेबल है, जो जनरली या तो टेस्टी होता है या हेल्दी होता है, दोनों ऑप्शंस नहीं मिलते, राइट। फिर आपने फीचर्स बताए, फीचर्स को आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग बुलेट्स में लिख कर आ सकते हैं, 5 to 6 बुलेट्स के पॉइंट रहेंगे। मैंने 6 ही लिखवाए, लोअर साइड पे नहीं रखा, हायर साइड पे रखा है, ये मानते हुए कि एक आध तो भूलोगे आप लोग, ठीक है। बट 5 से कम नहीं लिखने हैं आप लोगों को। ये आपके फीचर्स के पॉइंट हुए। फीचर्स के बाद में आप वेबसाइट और अटैचमेंट की लाइन आपकी फिक्स है ही, हर मेल में लिखनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो आप लोग लिखेंगे वो एड्रेस बता सकते हो, क्योंकि नई ब्रांच खोली है इसलिए अपन एड्रेस लिख रहे हैं, हर बार एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हैप्पी टू सर्व यू वाली लाइन आप लिखेंगे और वाइंड अप करेंगे। सो नाउ एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट? नो डाउट? क्लियर है क्या सबको? आवाज आई नहीं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेबसाइट का नाम लिख दिया ना अभिषेक अपन ने? कर दिया कि आपने वेबसाइट का नाम लिखना ही है, अपने को तो लिखा ही है अपन ने, अटैचमेंट और वेबसाइट वाला। एक बार ये वेरीफाई कराओ कि कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए अपन ने। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड करना बाकी है, फोर्थ करना बाकी है, फिफ्थ अपने को रिज्यूम में से करना है, ठीक है। सिक्स्थ हो गया अपना, सेवेंथ करना नहीं है, वही रिपीटेड है आपका, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को करवाना है, 9th आपका हो गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी कि ये क्वेश्चन चाहता क्या है।
रेज योर हैंड, नॉट लाइक दिस। यस, थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा बेटा। और जूम करें, इससे ज़्यादा तो बेटा कटेगा फिर। मोबाइल से डाउनलोड करके भी देख सकते हो, बुक नहीं है अभी तक? बुक है तो बुक निकालो। अब याद आई है कि बुक बैग से निकल सकती है। बुक से ही पढ़ रहे हो, अलग से तो पढ़ नहीं रहे, तो पीछे बैठे हो, वैसे भी अगर आगे भी बैठे हो तो स्क्रीन से कम देखा करो, बुक से ज्यादा देखो, वरना आंखें बटन हो जाएंगी, राइट? सो यस, व्हाट इज दिस क्वेश्चन स्पीकिंग, क्या बोलना चाह रहा है? जस्ट रेज योर हैंड, यू कैन एक्सप्लेन। आई कैन सी 1 2 3 हैंड्स हियर, 4 and 5। यस, छोटू। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर मेल वी कैन से, राइट? बैठो। रिमाइंडर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अपन ने आज तक नहीं किया है, ये फर्स्ट एवर सैंपल आ रहा है, तो अपन ये मानते हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पर कि मिस्टर संजय जौहरी हैं, ब्लूम्सबरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बिजनेस हेड हैं। उनकी मुलाकात ग्लोबल सॉल्यूशंस कंपनी की जो हेड है मिस शिखा शर्मा, उनसे हुई थी रिगार्डिंग द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। आपस में इनकी बिजनेस की रिगार्डिंग बातचीत हुई। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो जैसे जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये साल भर या 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं कि 2-3 साल तक आपकी कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस केस में आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट? सो इसी रिगार्डिंग इनकी शिखा शर्मा से बात हुई कि भाई आपकी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अगर कोई भी इशू होता है तो वी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, साल भर तक हम ही उसको रिजॉल्व करेंगे। मीटिंग हो गई, बातचीत हो गई, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस फाइनल हो गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेकर थोड़ा ना घूमते हैं। लॉ में पढ़ा होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट तो अपना स्टैम्प पेपर वगैरह पे, ऑथराइज पेपर वगैरह पे बनता है, राइट? तो वो अपन साथ लेकर तो नहीं घूमते। तो उन्होंने ये बोला होगा कि भाई हम ऑफिस से जाकर और आपको कॉन्ट्रैक्ट मेल करवाते हैं। मिस्टर संजय जौहरी ने ऑफिस आके कॉन्ट्रैक्ट मेल करवा दिया। कॉन्ट्रैक्ट मेल करवाते ही उन्होंने वेट किया कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जवाब आएगा, लेकिन शिखा शर्मा तो गायब हो गई, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। अब वो कंफ्यूजन की सिचुएशन में है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, जाके इनका एसी सही करना है अपने को या किसी और से करवाएंगी। तो वी आर सेंडिंग अ रिमाइंडर मेल, अपन एक रिमाइंडर मेल भेज रहे हैं ये याद दिलाते हुए कि भाई इस डेट को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें टर्म्स और कंडीशंस फाइनल हुए थे और उसी रिगार्डिंग उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने आपको इस डेट को मेल भेज दिया था। आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो अपन एक और मीटिंग रख सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेजें। आई ये बात समझ में? क्वेश्चन आया समझ में आप लोगों को? फॉर्मेट बनाइए, लैंग्वेज में लिखवा दो आपको। क्विकली मेक द फॉर्मेट। बनाया क्या फॉर्मेट आप लोगों ने? फ्रॉम में संजय चौधरी का मेल आईडी आएगा, 2 में शिखा शर्मा का, सीसी में XYZ, BCC को रिमेनिंग खाली छोड़ेंगे। सब्जेक्ट में लिखिए रिमाइंडर मेल, सब्जेक्ट लिखेंगे आप लोग रिमाइंडर मेल। यहाँ पे क्लियर है कि आप मैम को लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख लीजिए डियर मिस शर्मा या फिर डियर मैम, या सिंपल खाली मैम लिखकर छोड़ सकते हैं। खाली मैम लिख के छोड़ दो सैल्यूटेशन में। मैम ऐसे लिखना बेटा,
कई लोग MEM लिखते हैं, मीम, राइट, और कई लोग मैम, ठीक है, सो दोनों नहीं लिखना, इट्स मैम, राइट। ये मैडम का एब्रीविएटेड वर्जन है, तो डी की जगह एपोस्ट्रॉफी से अपन रिप्लेस कर देते हैं मैडम के डी को, राइट। सो दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग। इसके अलावा और किसी तरीके से मत लिखना, वैसे तो जैसे लिखते हो चल जाता है, बट एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए आप आगे लिखना स्टार्ट करिए। विथ रेफरेंस टू अ मीटिंग, जल्दी लिखना थोड़ा सा। विथ रेफरेंस टू आर मीटिंग dated DATED, with reference to a meeting dated, आज 16 सितंबर है, 10 सितंबर को मान लेते हैं मीटिंग हुई थी, तो डेटेड 10 सितंबर 2022, with reference to a meeting dated 10 September 2022, we want to remind you that we had sent the contract on 12th September 2022, on 12th September 2022, full stop। आगे लिखिए, however no reply has been received, till date मतलब आज की तारीख तक जवाब नहीं आया आपका, so till date, TILL till DATE, date। in our last meeting we had finalized the terms and conditions. In our last meeting we had finalized the terms and conditions of the contract, based on them we will be providing infrastructure maintenance service. To your esteemed organization. एस्टीम की स्पेलिंग सही लिखना, ESTEEMED, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट पैराग्राफ से, काइंडली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस if any further detail or clarification is required from your side. Kindly feel free to contact us if any further detail or clarification is required from your side. We can convene, ये वर्ड लिख लो, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज। कन्वीन करना नहीं, ऑर्गेनाइज करना, रखना, तो हम एक और मीटिंग रख सकते हैं। सो वी कैन कन्वीन, CONVENE, कन्वीन another meeting to discuss any issues that have come up.
we can convene another meeting to discuss any issues that have come up. एक लाइन छोड़कर, in case all is well, नेक्स्ट पैराग्राफ है ये एक लाइन छोड़कर, in case all is well, we would appreciate if you sign the contract, and mail it to us at the earliest. We would appreciate if you sign the contract and mail it to us at the earliest. Thanks and regards, Mr. Sanjay Chaudhary, Business Head, Bloomsbury Infrastructures. We would be happy to serve you at the earliest. इस क्वेश्चन को कल की क्लास में समझेंगे, आज सिर्फ लिख के खत्म कर दो, कल इसको लाइन बाय लाइन समझा देंगे, फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए. थैंक्स एंड रिगार्ड, मिस्टर संजय जौहरी, ब्लूम्सबरी बिजनेस हेड, ब्लूम्सबरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ठीक है, थैंक यू सो मच. ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, सेल्स और प्रमोशन. इसकी प्रैक्टिस अपन शायद इतनी कर चुके हैं कि अब एग्जाम में आए तो लैंग्वेज का इशू नहीं होगा. स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम लैंग्वेज बनाने में इशू है, उनको सेल्स और प्रमोशन की लैंग्वेज बनाने में इशू आ रहा है क्या? एनीबडी? सबको कॉन्फिडेंस है कि सेल्स प्रमोशन का कर सकते हैं? तो ये बेटा मैंने कोई ऐसे जादू नहीं किया इसमें. अपन ने एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया. पहले होम क्लीनिंग सर्विसेज सेल कर दी, फिर फर्नीचर कर दिया, इनोवेटर्स वाला डिस्कस कर लिया, उसके बाद में फिर अपन ने जो सैंपल्स पढ़े थे वो बैंक वाला सैंपल वो अपन ने पढ़ लिया, फिर उसके बाद में ये केटरिंग वाला करवा दिया आपको. तो एक ही क्वेश्चन की जब 4-5 बार प्रैक्टिस हो गई तो आपको ये समझ में आने लग गया कि अपने को फॉर्मेट क्या यूज़ करना है. तो अब फॉर्मेट जब अपने को पता है, फ्लो अपने को पता है, वे ऑफ राइटिंग अपने को पता है, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पुअर इंग्लिश, इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. यू ऑल कैन मेक द लैंग्वेज, राइट. सो अगर किसी के भी दिमाग में ये चीज़ है कि मैम हम लैंग्वेज नहीं बना सकते या हमारी लैंग्वेज गलत होती है, तो लैंग्वेज बनाने का काम मैं आपको दे ही नहीं रही हूँ. यहाँ पर अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि लैंग्वेज अपन एक ही बेस बनाए. मैं बार बार इस चीज़ को इसीलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको रिविजन के टाइम पे ध्यान रहे. तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था वो अपन कुछ और भी लिख सकते थे, डिस्कस भी किया था कि अपन ये 5-6 चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, बट क्यों नहीं ऐड करी? क्योंकि अपने को बेस वही बनाना था जो अपनी बुक में ऑलरेडी गिवन है. तो 5 बार अलग 5 चीज़ें पढ़ो, इससे अच्छा है कि एक ही चीज़ को 5 बार पढ़ लो जिससे कि वो याद इजीली हो जाए आपको. ठीक है, तो यही शॉर्टकट है और यही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है लैंग्वेज जिनको बनाने में प्रॉब्लम आती है या जिनको लैंग्वेज रिलेटेड इशू आता है, राइट. और बाकी जो स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करना चाहते हैं और जिनको ये लगता है कि नहीं मैम हम खुद लिखना चाहते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी की क्रिएटिविटी नहीं मारनी. बस अपना जो भी क्रिएटिव काम है वो मुझसे चेक करवा लेना, जिससे मुझे सही पता रहे कि आपकी क्रिएटिविटी पॉजिटिव साइड में जा रही है कि नहीं जा रही है. ठीक है, तो गेट योर कॉपीज चेक इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन. और बाकी कॉमन लैंग्वेज तो अपन क्लास में चेक करते ही हैं सबके साथ, राइट. सो कल जो क्वेश्चन लिखवाया था उसका एक सैम्पल दे दो, मुझे तो अब याद नहीं है जो मैंने लिखवाया था कल आपको.
ये अच्छी हैंड राइटिंग है तुम्हारी। किसने बोला था? हाँ हाँ, क्योंकि जनरली ऐसे घुमा घुमा के लड़कियां ही लिखती हैं बेटा। सो बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ गुड हैंड राइटिंग, गुड प्रेजेंटेशन। तो कल जो अपन ने केटरिंग वाला क्वेश्चन किया था उसमें कोई डाउट है किसी को? वो क्लियर है सबको? ठीक है, अब अपन ने उसके बाद किया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने सबने मिलकर शिखा शर्मा को याद दिलाने की कोशिश करी थी कि भाई एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के रिगार्डिंग टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड हुई थी, तो या तो आप फाइनल करो कॉन्ट्रैक्ट या फिर हमें बख्शो, हम किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? तो कंफ्यूजन की स्टेट में उन्होंने अपने को रख रखा है, तो उसको रिमाइंड कराते हुए अपने को मेल लिखनी है, ठीक? तो एक बार लैंग्वेज आप लोग समझ लीजिए। सब्जेक्ट में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको रिमाइंडर मेल लिखना है, सिंपल सब्जेक्ट रखना है, बहुत ज़्यादा अपने को ऐसे ना तामझाम नहीं करने हैं, जो टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है ना वही लिखनी है, उसके मार्क्स मिल जाते हैं पूरे अपने। फिर उसके बाद में मैम करके अपन ने सैल्यूटेशन किया, सैल्यूटेशन के बाद में प्रेफरेबली एक लाइन छोड़ दिया करिए आप लोग, ठीक है? अगर अभी तक नहीं छोड़ रहे थे तो अब से छोड़ देना। मार्क्स नहीं कटेंगे, ये 9 वाइन छोड़ने के, लेफ्ट में लिखने के, ये सब करने के मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन पुअर प्रेजेंटेशन के मार्क्स ज़रूर कट। तो अब जैसे यहाँ पे ये हर्ष ने मैम लिखा, मैम की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी पहले तो, फिर उसके बाद में ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो उसके नीचे एकदम से कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया, तो अब ये सैल्यूटेशन दिख नहीं रहा है। अपन जितना कॉपी चेक करने वाले के लिए आसान बनाएंगे ना, उतने अपने मार्क्स मिलेंगे, राइट? और थ्योरी सब्जेक्ट में मान के चलो ऑल दो स्टेप मार्किंग होती है, सब होता है, ये सारी बातें सच है, बट थ्योरी सब्जेक्ट में फिर भी 10-12% मार्क्स कॉपी चेक करने के वाले के हाथों में होते हैं, राइट? So the more you will make it easier for him to check the copy, the better you will secure the marks. ठीक है? अब इसमें अपन ये सोचे यार इसको तो पता ही होगा ना, इतना तो आता ही होगा ना, तो आपको आंसर शीट में आंसर इस तरीके से लिखने हैं जैसे उसको आंसर आते ही नहीं है। आपकी कॉपी पढ़कर ही वो बेचारा लेटर मेल बनाना सीखेगा, राइट? आपकी कॉपी पढ़कर ही उसको मीटिंग्स का आइडिया लगेगा, आपकी कॉपी से ही वो रिज्यूम बनाने का आइडिया लगेगा उनको। तो किसी पर्सन को अगर ज़ीरो से सिखाना हो तो कैसा प्रेजेंटेशन दोगे, वैसा प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर देना है, राइट? सो यू ऑल हैव टू कीप दिस इन माइंड कि वंस यू आर प्रेजेंटिंग इन द बेस्ट वे, तो आपने 4-5 नंबर तो अपने ऊपर से सिक्योर कर ही लिए, स्पेशली इन रिपोर्टिंग, ठीक है? चलिए, सो यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। विथ रेफरेंस टू आवर मीटिंग डेटेड 10 सितंबर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 10 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट वी हैड सेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन 12 सितंबर। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेट को भेज दिया था? 12 सितंबर को भेज दिया था। तो ये 2 डेट्स ही मेन है अपने रिमाइंडर में कि भाई 10 तारीख को मीटिंग हुई थी, 12 को आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया था। ऐसा अपने को कभी नहीं मानना चाहिए कि यार इसको याद ही होगा ना, सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भेज वरना छोड़, राइट? तो ऐसे मुद्दे की बात नहीं करते ना, फॉर्मल लैंग्वेज पूरी मतलब पूरी पुरानी रामायण लेकर आते हैं, पूरा इलेबोरेशन करते हैं, सब कुछ याद दिलाते हैं, फिर मुद्दे की बात तो 2 लाइन 3 लाइन में ही करते हैं बस, राइट? फिर उसके बाद में however नो रिप्लाई हैज़ बीन रिसीव्ड टिल डेट। टिल डेट मैंने कल भी बताया था, टिल डेट का मतलब क्या होता है? आज की तारीख तक, राइट? सो ये दिस इज अ गुड वे ऑफ राइटिंग, इसको आप कैच कर सकते हो। However, in our last meeting we had finalized the terms and conditions of the contract. term और condition full form में लिखना हर अगली बार। So last meeting में हमने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन डिस्कस कर लिए थे। कॉन्ट्रैक्ट लेकर थोड़ा ना घूमते रहते हैं अपन तो डिस्कस ही करेंगे जाकर कि भाई ये टर्म्स रहेंगे, कंडीशन रहेंगे, अगर आपको ओके है तो हम एक ड्राफ्ट बना के आपको भिजवा देते हैं। बेस्ड ऑन देन वी विल बी प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस सर्विसेज टू योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। पूरा लिखना है, इसको भी शॉर्ट में लिखने के लिए एक चैप्टर बना है आपका, उसमें शॉर्ट में ही लिखना, फिर उसमें बड़ा लिखोगे, देखना उल्टा चलता है हिसाब।
सो आपके एस्टीम्ड रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम उस बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं. काइंडली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस इफ एनी फर्दर डिटेल और क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड. अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए. और अगर सब कुछ सही है तो हम एक मीटिंग और कन्वीन कर सकते हैं. कन्वीन करना यानी ऑर्गेनाइज करना. तो हम एक मीटिंग और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. और अगर सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें और भेजें. बस इतनी सी बात है. तो इसमें वर्ड लिमिट वगैरह का चक्कर नहीं. वर्ड लिमिट का एक्सक्लूसिव चक्कर आपका है ना रिप्लाई टू इंक्वायरी, सेल्स प्रमोशन, इनमें होगा. बाकी अब जैसे वो अपन ने एक लीव एप्लीकेशन करी थी तो उसमें 1.5 पेज का क्या लिखोगे? बीमारी तो एक्सप्लेन करने जाओगे नहीं, राइट. तो पहले दिन ऐसा हुआ बीमारी में, फिर दूसरा दिन ऐसा हुआ, फिर तीसरे दिन तो हालत ही खराब हो गई मैडम. तो ये तो नहीं लिखेंगे अपन. तो जिसमें कंटेंट की कमी है वो तो रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू विल गेट द फुल मार्क्स. ठीक. इस रिमाइंडर मेल वाले क्वेश्चन में कोई डाउट? कर लेंगे आप लोग रिमाइंडर मेल वाला क्वेश्चन. सब लोग कुछ भी चीज को रिमाइंड करवाना हो, कोई गुड्स डिलीवर नहीं करे वो रिमाइंड करवाना हो, कोई सर्विसेज डिले कर दी उसके बारे में रिमाइंड करवाना हो, तो सब रिमाइंड करवा सकते हैं, याद दिला सकते हैं अपन. एवरीबॉडी पक्का? ठीक है, ओके. सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब जो क्वेश्चंस मेजरली अपने बच रहे हैं वो मुझे ही लिखवाने हैं आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के सैंपल्स आपके पास नहीं है. सो कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4. 2 पेज का मेल बनेगा इसका आपका. पहले क्वेश्चन समझ लो फिर लिखवाते हैं. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जल्दी मत मचाओ, जल्दी मचा के करोगे भी क्या? लिखवाना तो मुझे ही है. पहले क्वेश्चन समझ लो ध्यान से. यू आर अमर सिंह. आप लोग सब कौन हो यहाँ पे? अमर सिंह का डेजिग्नेशन क्या है? आवाज ही नहीं निकली, अभी भी नहीं निकली. टीम लीड. लीडर नहीं, टीम लीड. कौन से डिपार्टमेंट के? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट. कंपनी कौन सी है आपकी? सेल्युलर टेलीकम्युनिकेशन. क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट आपको? Write a mail to all members of your team asking them to attend a meeting after 2 days. आपकी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए मेल लिख रहे हो कि भैया 2 दिन बाद मीटिंग है, उसमें आप लोगों को आना है. ठीक. मीटिंग किसके रिगार्डिंग है? सीकिंग देयर सजेशंस ऑन वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी इन XYZ एरिया ऑफ द सिटी. ये क्वेश्चन में गिवन है आपके कि जो मीटिंग है वो है कि भाई हम कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमें आपके सजेशंस चाहिए. प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट ये ऐसा कह रहे हैं अभी वैसे ही समझ लो. अगर पेन नहीं चलेगा तो 2 मिनट में उनको बुला लेंगे. ओके. तो आपकी जो कंपनी है बेटा वो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. ठीक है. और उस कंपनी में आप XYZ एरिया में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं. तो अपन ये मान लें जैसे टावर वगैरह लगते हैं, तो टावर वगैरह लगते हैं तो इसका रेडिएशन थ्रेट वगैरह रहता है, सोसाइटी में कॉलोनी में नहीं लग सकते, लेकिन ये कनेक्टिविटी भी इंप्रूव करता है. अलग अलग एरियाज में नेटवर्क आता है, आपका वाईफाई कनेक्शन वगैरह आता है, तो इन सब के थ्रू अपनी कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होती है. राइट. सो यहाँ पर जो बात हो रही है कि भाई हम एक कनेक्टिविटी इंप्रूव करने पे वर्क कर रहे थे और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी. उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम लोगों को आपके सजेशंस चाहिए. तो सजेशन लेने के लिए हमने मीटिंग करी है. समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? अगर जैसे आप लोगों को याद है अपन ने एक एजेंडा वाला कॉन्सेप्ट किया था, तो उसमें अपन पहले से ही बताते थे कि भाई क्या 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 डिस्कस होने वाला है. राइट. तो ऐसे ही अपन यहाँ पे मीटिंग के साथ में ये भी बताएंगे कि हम मीटिंग में क्या डिस्कस करने वाले हैं. अगर पहले से नहीं बताएंगे तो फिर तो वो जो लोग आएंगे वो तो चाय और समोसा खा के जाएंगे,
क्योंकि वो पहले से कोई रिसर्च तो करी नहीं उन्होंने, वर्किंग कुछ करी नहीं उन्होंने, राइट। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अपन पहले ही बताएं कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके वैल्यूएबल सजेशंस हमें चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग, मीटिंग की इंफॉर्मेशन देने के रिगार्डिंग अपने को एक मेल लिखना है। अब मुझे एक चीज बता दो, आप लोग 2 में क्या लिखोगे? बहुत सारे नाम, कितने सारे? 5-6 नाम क्यों लिखोगे? यस, आप जो मेल कर रहे हो वो अपने टीम के मेंबर को कर रहे हो, आप उस टीम के हेड हो, ठीक है। तो आपकी टीम में 5-6 जने तो होंगे कम से कम, इससे छोटी टीम तो नहीं बनाओगे आप लोग, राइट। तो जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी को बुलाना है अपने को, तो सबके नाम आ जाएंगे। तो 6 ईमेल आईडीज लिख देंगे आप लोग सब। तो ये क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कि कब एक ईमेल आईडी लिखना है और कब एक से ज्यादा ईमेल आईडी लिखना है। ये समझ आएगा आपको क्वेश्चन पढ़ के? ठीक है। Yes, online students, am I audible to everybody? पीछे आ रही है आवाज आप लोगों को? क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी कंफर्म करो। ओके। सो मैंने कौन कौन से लेटर्स आप लोगों को लिखवा दिए हैं मेल में? सेल्स प्रमोशन तो पहले से ही चल रहा है। इसमें जो नए थे, एक तो रिप्लाई टू इंक्वायरी करवा दिया था, 8th वाला प्रमोशन वाला। ओके। सो वो वाला करवा दिया था। वो मीटिंग की इंफॉर्मेशन देनी थी, डेट टाइम प्लेस, वो कब करवाया था? परसों करवाया था क्या वो? और उससे एक दिन पहले क्या करवाया था? रिमाइंडर मेल करवाया था। ठीक है, तो रिमाइंडर मेल और इंफॉर्मेशन वाला हो गया, एक क्वेश्चन बच रहा है अपना। ठीक है। सो ये वाला जो अपॉइंटमेंट मेल का क्वेश्चन था, ये आप लोगों को गूगल पे बताया था मैंने? आप लोगों ने कॉपी में लिख रखा है या है आपके पास इमेज वगैरह कुछ? इमेज है? ठीक है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है ये। एज द HR हेड ऑफ एक्सेस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, write an appointment mail to Mr. Anshul Malik informing him about his selection in team lead sales and marketing division। तो ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि आप लोग सब एक्सेस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के HR हेड हो, राइट। आपको अपॉइंटमेंट मेल लिखना है। किसको लिखना है वो मेल? मिस्टर अंशुल मलिक को, ये बताते हुए कि सेल्स और मार्केटिंग डिवीजन के टीम लीड की पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। तो ये लेटर फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेल फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बस ये अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन देनी है। लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अपॉइंटमेंट मेल या लेटर आप सर्च करोगे गूगल पे, बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई इसमें कमी नहीं। जो मैंने आप लोगों को कंटेंट दिया था वो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगता है। रीज़न बीइंग, एक तो कम लिखना है उसमें आपको, और दूसरा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कवर हो रही है, तो कोई भी अपन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं कर रहे, पहली चीज़ उसमें। और दूसरा आप लोगों के हिसाब से लर्न करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो लिखवा दूँ ये वाला क्वेश्चन? फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से।
ये एक सैंपल था जो मैंने शेयर किया था, इसको बेस बनाकर लिख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं लिख सकते, ठीक है। फॉर्मेट बना लो, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट मेल लिख लीजिए। बना लिया? घर जाके कोई रिवाइज वगैरह किया क्या रिपोर्टिंग को, या खुली नहीं होगी कॉपी? खुली थी क्या? नहीं खुली होगी, आई एम श्योर। क्वेश्चन शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, वहां से ले लीजिए फ्रॉम टू की इंफॉर्मेशन। हाँ, एक्सेस टेलीकॉम के नाम से भी बना सकते हो आप लोग मेल आईडी, जरूरी नहीं कि हमेशा नाम से ही बनाओ, कंपनी का नेम गिवन है तो उससे भी बना सकते हो। संडे को फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने, कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स और स्टैट्स, अकाउंट्स, पढ़ाई करी मतलब संडे को? ज़्यादा टाइम है भी नहीं आप लोगों के पास, अक्टूबर नवंबर बस, ये तो आधा तो ऑलमोस्ट निकल ही गया, सितंबर तो। दिवाली थोड़ा ना मनाओगे तुम लोग, बनाओगे क्या? हाँ, चलो बना लिया फॉर्मेट आप लोगों ने सबने। फ्रॉम में क्या लिखा? access@gmail.com, accesstelecom@gmail.com, ये लिख सकते हो आप। और अगर आपने कोई तीसरा ईमेल आईडी लिखा है तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। टू में क्या लिखा? anshulmalik@gmail.com। सीसी में क्या लिखा? XYZ। सीसी में हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर दिया गया मेल रिपीट नहीं करना अपने को, राइट। तो अगर बाई चांस किसी रीजन से ऊपर XYZ लिख दिया तो सीसी में कुछ और लिख देना, ठीक है। आती है आपको ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट, कोई सा भी बना देना, ठीक। फिर उसके बाद में बीसीसी में खाली छोड़ा, हेडिंग बना के तो छोड़ रहे हो ना, हेडिंग तो बना रहे हो कम से कम, ठीक है। सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट मेल, आप लिखना स्टार्ट करिए। डियर मिस्टर मलिक, सर नहीं लिखेंगे, अपन तो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो डियर मिस्टर मलिक, मलिक यहाँ पे गिवन है सरनेम। डियर मिस्टर मलिक, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लोग ऐसे हेडिंग बनाइए, अपॉइंटेड एज, अपॉइंटेड एज, फिर आगे डैश करके लिख दीजिए टीम लीड, कॉमा करके सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन। क्वेश्चन में है ये अपने को गिवन, टीम लीड सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन। अपन ने पोस्ट सबसे पहले बता दी कि किस पोस्ट पे अपन ने अपॉइंट किया है। अब एक लाइन छोड़कर लिखिए, इन रेफरेंस टू योर रीसेंट इंटरव्यू इन, एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग होगा, तो इससे बस रेफरेंस ही लेना है यहाँ से। इन रेफरेंस टू योर रीसेंट इंटरव्यू डेटेड 10th September 2022, 10 दिन तो लेंगे अपन मेल करने में। 10th September 2022, we are pleased to inform, कॉमा करके लिखना, we are pleased यानी खुश होना, प्लीज यानी खुश होना, राइट। So we are pleased to inform you that we are offering you the position, we are offering you the above mentioned position. We are offering you the above mentioned position with our company
effective from 1st October 22 under the following terms and conditions. Under the following terms and conditions. एक लाइन छोड़कर लिखिए। अब इसमें पहली पॉइंट बुलेट पॉइंट जैसे इसमें बना रखा है, सैलरी कितनी दें सैलरी अपन इसको पर मंथ, बस इतनी सी। अरे यार बहुत कंजूस हो। हाँ चलो हेडिंग दीजिए, इंडियन कंपनी है बेटा, नो डॉलर्स, राइट, देना है तो दिरहम में दो। सो सैलरी हेडिंग बनाइए। सो द सैलरी ऑफर्ड to you, the salary offered to you as per interview interaction will be 12 lakhs पर एनम। 1 लाख रुपए तो दे महीने का, आजकल सबसे नॉमिनल अमाउंट है। तो ऐसे लिख सकते हो उसको, LPA लैक्स पर एनम, राइट, और पूरा लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 lakhs पर एनम। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए आप लोग, प्रोबेशनरी पीरियड। हाँ एक एक लाइन छोड़ते जाओ। प्रोबेशनरी पीरियड, किसी को पता है क्या होता है प्रोबेशनरी पीरियड? नोबडी? यस, किसने बोला ये? यस हाँ तुमने भी बोला बेटा। सो नाम बता दीजिए एक बार अपना, तालियां बजवा देते हैं यहाँ पर। एक्नॉलेजमेंट पूरा मिलना चाहिए ना, जो काम किया है वो उसकी अप्रेज पूरी मिलनी चाहिए। तो कितना कोऑर्डिनेटेड है, नाम पूछे बिना मुझे तालियां बजानी है, पहले बजा दो। सो प्रोबेशनरी पीरियड इज बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड, राइट। सो ट्रेनिंग पीरियड में आपको जांचा जाता है, परखा जाता है, और फिर उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ वगैरह हाईलाइट होती है, वीकनेस भी हाईलाइट होती है जब आप काम करते हो। तो उसके बाद डिसाइड होता है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय बनने के काबिल हैं कि टाटा बाय बाय करने के काबिल है, राइट। तो उसके हिसाब से बट प्रोबेशनरी पीरियड में जनरली तो ये होता है कि पहले 3 महीना या 6 महीने का होता है, तो उसमें थोड़ा अमाउंट ये लोग कम रखते हैं, फिर अगर आपका परमानेंट हो जाता है तो सैलरी बढ़ा देते हैं। अपन तो ये मान लें 12 लाख रुपए शुरू से ही है, काम बढ़िया करेंगे तो पैसे और बढ़ा देंगे, ठीक है। सो प्रोबेशनरी पीरियड का पॉइंट लिखिए, द प्रोबेशनरी पीरियड, स्पेलिंग यहाँ से देख लेना आप लोग। द प्रोबेशनरी पीरियड नीड टू बी सर्व्ड, the probationary period need to be served by you comma करके after joining the job कितने टाइम की ट्रेनिंग दे? 3 महीना, 6 महीना, 6 months? बहुत ही डिफिकल्ट एम्प्लॉयर्स हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, ट्रेनिंग भी ज़्यादा करवा रहे हो। हाँ, after the job will be 6 months, will be 6 months। ये तो मैंने 12 लाख लिखवा दिया, वरना यहाँ तो 50,000 ही दे देते। will be 6 months। 1 लाख 1-1.5 लाख रुपए तो आजकल हर जना कमा लेता है, नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, वर्किंग आवर्स। The working hours to be followed by you, the working hours to be followed by you will be dash करो,
और उसके आगे लिखिए मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है भाई, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग। इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए 8 आवर्स, 8 घंटे काम करवाएंगे, आने जाने का टाइम फिक्स नहीं करते, ठीक है, 8 आवर्स। कॉमा करके सैटरडे संडे छुट्टी कर दे, हाफ डे, दोनों दिन। बेटा मुश्किल हो जाएगी ऐसी नौकरी अगर अपने को मिल गई तो। सो सैटरडे एंड संडे ऑफ, ऑफ फुल डे, हाँ यो जमी नहीं दी उसको ये बात। सैटरडे तो आप लोग ही ऑफ ले लेते हो, यहाँ पर पढ़ाई में ही ले लेते हो, तो ऑफिस में नहीं लोगे क्या? सैटरडे एंड संडे ऑफ, कॉमा करके लंच ब्रेक, 1 घंटे का लंच दे दे, 2 घंटे, आधा आधा घंटा 1 घंटा तो सब जगह मिलता है, 1 आवर दे देते हैं। चलो यार सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोचें। सो लंच ब्रेक 1 PM to 2 PM, 1 PM to 2 PM। अब छुट्टियों की बात आती है तो एक लाइन छोड़िए और हेडिंग बनाइए लीव पॉलिसी। आपकी कम नहीं होगी तो लीव की तो पॉलिसी ही नहीं होगी, बोले छुट्टी वुट्टी का कोई काम नहीं है। तब अगली बार GCF कोई छुट्टी होगी तो बोल देंगे GCF 13 को छुट्टी की जरूरत नहीं है। ये लोग बिलीव ही नहीं करते छुट्टी वुट्टी में, है ना। चलिए सो ये लिखिए लीव पॉलिसी, लीव पॉलिसी में लिखिए आप लोग 24 लीव्स पर ईयर विल बी ग्रांटेड, 24 लीव्स, जनरली 1 महीने की 2 छुट्टियां सबको अलॉट होती हैं, तो 24 लीव्स पर ईयर विल बी ग्रांटेड। उसके आगे फुल स्टॉप करके आगे लिखिए डिटेल्स ऑफ सिक लीव, अर्नड लीव, कैजुअल लीव, मैटरनल लीव, पैटर्नल लीव। ये यहाँ लिखा हुआ है बेटा, आराम से देख के लिख लो। Details of sick leave, earned leave, casual leave, maternal leave, paternal leave will be in accordance with, लिख लिया यहाँ तक, बोल लूँ आगे, नहीं लिखा? अभी 8-10 साल बाद पता चल जाएगा, टाइम लगेगा ज़्यादा। सो डिटेल्स ऑफ सिक लीव, अर्नड लीव, कैजुअल लीव, मैटरनल लीव, पैटर्नल लीव विल बी इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट के हिसाब से होंगी ये लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बना दीजिए नोटिस पीरियड क्लॉज। इसका क्या मतलब है, एनीबॉडी कैन टेल? नहीं, फायर करने के लिए अपन तो नोटिस नहीं देंगे, अपन तो कहेंगे जाओ चलो हो गया, राइट। जो छोड़ के जाना चाहता है वो ऐसे नहीं बोल सकता कल से नहीं आऊंगा, मतलब 1 महीना 2 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा उसको, राइट। सो नोटिस पीरियड क्लॉज, तुम्हें पता है ना बेटा, खुद को ही क्यों हंसी आ गई तुम्हें? तो अगली बार टाइम से आना। ऑफिस में थे, ऑफिस वालों से बात करनी पड़ेगी, GCF 13 को ही रोकते हैं, ठीक है बैठो। इफ द एम्प्लॉय desire to leave the company, if the employee desire to leave the company, he or she, as it is same लिखवा रहे हैं अभी तक, he or she needs to serve, पीछे अगर दिख नहीं रहा तो आपके पास इमेज होगी इसकी, लास्ट क्लास में दे दी थी, वहां से लिख लेना। He or she needs to serve the notice period of
2 months of 2 months as per stated by the present company, as per stated by the present company in the agreement, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लिखना, अग्रीमेंट वर्ड लिखना है, ठीक है। लिखा आप लोगों ने सामने, और ये लिखते लिखते समझ भी आ गया होगा, तो ये लर्न करना मुश्किल है किसी के लिए। सो अपन ने सबसे पहले, अभी आगे थोड़ा सा लिखना है बट यहाँ तक का समझ लीजिए। सबसे पहले अपॉइंटेड एज में अपन ने अपना डेजिग्नेशन दे दिया जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर रेफरेंस प्रोवाइड किया कि कौन से रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, और फिर टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखनी शुरू करी। सैलरी कितनी देंगे, प्रोबेशनरी पीरियड कितने टाइम का, वर्किंग आवर्स की डिटेल्स अपन ने मेंशन करी, उसके बाद लीव पॉलिसी और नोटिस पीरियड की इंफॉर्मेशन अपन ने दे दी, ठीक है। अब आप लोग कंग्रेचुलेट कर दो एक लाइन छोड़कर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कई लोग स्टार्टिंग में भी लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन वाली लाइन, अपन ने स्टार्टिंग अलग करी तो यहाँ लिख देंगे congratulations on your appointment, congratulations on your appointment, full stop. We look forward to long-term association. We look forward to long-term association with you. हमें उम्मीद है कि आप आओगे और आके यहाँ पे टिकोगे। तो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन का मतलब यही है कि हम भी आपको नहीं निकालेंगे, आप इतने अच्छा काम करोगे और आप भी नहीं जाना चाहोगे, राइट। अब आप लोग लिख लीजिए नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स। जो भी आपका सेंडर है उनका नाम गिवन नहीं है तो अज्यूम करके लिखेंगे, डेजिग्नेशन गिवन है HR, कंपनी का नाम भी गिवन है एक्सेस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन शो करूं, नेम ऑफ द सेंडर HR हेड एक्सेस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये हो गया आपका मेल खत्म। ऐसा कोई सा भी मेल है जो अभी तक अपन ने किया और जिसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो? लैंग्वेज समझा दी थी लास्ट क्लास में सारी जो भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। सो इज देयर एनी क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई हो, पढ़ के घर जाके ऐसा लगाओ, घर जाके वैसे पढ़ा तो नहीं होगा बट इन केस किसी पे शक हो किसी लैंग्वेज पे कि भाई ये घर जाके पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगी, तो उसका हिंदी में समझा देते हैं, अभी नहीं है। सो लेटर मेल की इम्पोर्टेंस मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले ही बताई थी कि लेटर मेल का क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, दो में से एक किसी में भी आ सकता है। फॉर्मेट तो याद हो ही गया होगा आपको करते करते, राइट। फॉर्मेट के अलावा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी क्वेश्चन अपन ने करे हैं यहाँ पर उसके अलावा आउट ऑफ लीग नहीं आता अपने एग्जाम में, बट जो करे हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। मिलता जुलता आएगा ही आएगा। सारे क्वेश्चन हो गए, कोई स्किप तो नहीं हुआ पीछे का? और वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने का काम करना है। आपके पास कंटेंट पूरा है, लैंग्वेज पूरी है, समझा हुआ पूरा है, याद करके जाओगे फुल मार्क्स आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस टॉपिक में आप लोगों को, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं है? कॉन्फिडेंस है कि पूरे नंबर ला सकते हो? सबको है 100%? या मुझे बोल दो खाली? पक्का है? चलो वेरी गुड देन। मैम क्वेश्चन 5 रिज्यूम राइटिंग वाला, हाँ क्वेश्चन 5 बेटा रिज्यूम राइटिंग में करेंगे अपन, छोड़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट तो अब अपन ने दे दिया, अब खुद भी नौकरी ले लें अपन ज़्यादा, राइट। सो रिज्यूम राइटिंग शुरू करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक, हर्ष 5 दबा दो और फिर वापस दबा दो, 5 2 बार दबा दो।